Good morning, everyone. Today we will start our new chapter, which is laws of motion. This is chapter number 5 in NCERT, part 1. Right. So we are starting from law of inertia. Law of inertia. So what do you mean by law of inertia? You have studied it in lower classes about law of inertia. Law of inertia says that if there is a body and that body is in rest, then the body will continue to be in rest, and if a body is in uniform motion, then that body will try to continue in uniform motion only. Right, this was your law of inertia. Okay, after that the next thing is, after this let us see what we have next is Newton's first law of motion. You can see here Newton's first law of motion. So let us recall the memories of 9th class again. What is Newton's first law? Newton's first law is very similar to law of inertia. What we study in law of inertia, it is very same, just like it is in Newton's first law. Newton's first law says that if there is a body and that body is at rest, then it will remain in rest, and if a body is in uniform motion, then the body will remain in uniform motion until you are not going to apply some external force. Until you are not going to apply some external force, the body in rest will continue to be in rest, the body in motion will continue to be in uniform motion only. Only when you will apply some external force, then only the state of the body will change. It will change from the rest to uniform motion, or from uniform motion to rest. It will come. Right. This was your Newton's first law. After that, the next topic is, only we have to study brief discussion we have to do of these topics, because these topics are removed from the syllabus by CBSE this year. So after this, what we have next is momentum. Okay, what is momentum? Momentum is a product of mass and velocity, and it is denoted by a small p. So p formula will be equal to mass into velocity. Momentum of a body depends on two things: mass of body and velocity of body. With the help of its formula, you can find out its unit. Its unit will be kg meter per second, and with the help of its formula only, you can find out its dimension formula. It is mlt minus 2. It is a vector quantity. Momentum is a vector quantity. If I will write in vector form, then the formula will be p vector is equals to mv vector. You can see clearly here, from this expression we can find out the direction of momentum. The direction of momentum will be in the direction of velocity. Okay, so this was all about momentum. Let us see our next topic is Newton's second law of motion. So what is Newton's second law of motion? Newton's second law of motion says that the rate of change of momentum, this expression, this ratio, I can say it is rate of change of momentum. It will be directly proportional to the external force applied. It will be directly proportional to the external force applied. This was your Newton's second law. With the help of this expression, we can find out the formula F is equals to ma, which you already did in 9th class. So you can revise from there, because like I said, in 11th class this topic is removed from the syllabus by CBSE. Okay, so this was your Newton's second law. With the help of Newton's second law, we will be able to get this formula F is equals to ma. With the help of this formula, you can say that the dimensional formula of force will be mlt minus 2, and SI unit of force is Newton. Remember it. Its symbol is N. Its CGS unit is dyne. Dyne is its CGS unit. Relation between Newton and dyne is 1 Newton is equals to 10 to the power 5 dyne. This is the relationship between Newton and dyne. After that, what about force? It is the vector quantity or a scalar quantity. Then the answer is it is a vector quantity. After this, let us see what is our next topic. Next topic is impulse and Newton's third law.
like you can see here is your topic impulse. Okay, so impulse also we have to study briefly. We will not study it in detail. So what is impulse? Impulse is when a force is applied for a very short time. So when you are applying a force for a very short time, then it is called providing impulse. Okay, then it is called impulse. Impulse is also, you can say, change in momentum. Impulse is also equal to change in momentum. If impulse you are denoting, let us see by what they are denoting impulse. They have not shown here impulse. Impulse, you can see, impulse is the product of force and the time duration. Okay, force into time duration, we can also call it change in momentum. Why? Because we know F was proportional to delta P upon delta T from second law of motion. Okay, if you cross multiply, you get F delta T is proportional to delta P. So here you can see this is the product of force and the short time interval, and it is proportional to change in momentum. That's why here we have written that impulse is also equal to change in momentum. So whatever will be the unit of change in momentum, same will be the unit of impulse here, and whatever will be the dimensional formula of change in momentum, same will be the dimensional formula of impulse. Or you can calculate the formula of impulse by this formula, dimensional formula of impulse. Using this formula you can obtain, the formula is force into change in time, or the very short time for which the force is applied. After this, let us see what we have next. Yes, after impulse, on the right side you can see we have Newton's third law. Newton's third law of motion. What is Newton's third law of motion? If suppose there are two bodies A and B, and if one body has done some action on the second body, then in reply second body will give some reaction on the first body. It is called your third law. It is called your third law of motion. These all three laws are given by a great scientist, name is Isaac Newton. Okay, yes, this is the vector form. This is the vector form of you can say Newton's third law of motion. Here the two forces which the bodies will apply on each other, they will be equal in magnitude but opposite in direction. That's why this minus sign you can see here, it is coming. This minus sign is showing that the direction of the two quantities are in opposite direction, and this equal symbol is showing that the magnitude of the two forces were equal which were applied by each other. Okay, after this let us see what we have next. Next is conservation of momentum. Next topic is conservation of momentum. Now let us see what is conservation of momentum. Conservation of momentum says that total momentum of system is conserved. Total momentum of system is conserved when external force is 0. On the system, if external force is 0, then whatever total momentum will be there of the system, it will remain conserved. Conserved means whatever will be your initial momentum, it will be equals to the total final momentum of the body coming in the system. Now system, आप लोग सोचेंगे कि सिस्टम क्या चीज़ है, तो सिस्टम हम किसे कहते हैं? सिस्टम हम उसे कहते हैं जिस सिस्टम में अगर मान लीजिए कोई दो बॉडीज़ हैं and the two bodies are interacting with each other, मतलब एक दूसरे पर प्रभाव डाल रही हैं, प्रभावित कर रही हैं एक दूसरे को, तो ये दोनों बॉडीज़ काहे में कहलाएंगी? ये दोनों बॉडीज़ एक सिस्टम में कहलाएंगी. ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा. इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक डेरिवेशन है. डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन कुछ ऐसे है. हाँ जी, ये रहा आपके सामने डेरिवेशन. अब डेरिवेशन करते हैं. देखिए क्या चीज़ है डेरिवेशन में. दो बॉडीज़ कंसीडर कर ली गई हैं, एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी. इनिशियल मोमेंटम मीन्स प्लूरल ऑफ मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम है पी ए और पी बी, और फाइनल मोमेंटम है पी ए डैश एंड पी बी डैश.
ये फाइनल मोमेंटम आया कहाँ से, क्योंकि बॉडीज़ जो थी कोलाइड हो गई थी, बॉडीज़ कोलाइड हो गई थी, कोलाइड होने की वजह से मोमेंटम चेंज हुआ। पहली बॉडी का मोमेंटम पी ए डैश हो गया, दूसरी का हो गया पी बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये इस तरीके से लिख रखा है, ये कहाँ से आया, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कि F प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के। आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके आपके पास एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा आपको। इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 1 होती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट F डेल्टा टी विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दैट्स वाई यू कैन सी हियर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डेल्टा टी is equals to change in momentum, which shows by PA dash minus PA. Okay, and the force is PAB. Now what is the meaning of this PAB? Not PAB, FAB. The meaning of FAB is force applied on body A by body B. जो अल्फ़ाबेट पहले लिखा है उस पर फोर्स लग रही है, जो बाद में लिखा है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। That means FAB is force applied on body A by body B. जब बॉडी B A पर फोर्स अप्लाई कर रही है तो क्या होगा, बॉडी A का ही मोमेंटम चेंज होगा ना, इसलिए देखो यहाँ पर हमने चेंज इन मोमेंटम बॉडी A के लिए लिखा है। आफ्टर दैट इन द सेम वे वी कैन से दैट फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी B by A will be and into delta T it will be equal to PB dash minus PB. Now with the help of third law we can say that FAB vector is equals to minus FBA vector. आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैं तो वेक्टर लगा रहा हूँ लेकिन यहाँ इक्वेशन में वेक्टर नहीं दे रखा, तो ऐसा नहीं है। ये जो आपको बोल्ड लेटर्स में दिखा रखा है NCERT में यही तरीका है। ये जो हम वेक्टर क्वांटिटी शो करते हैं या वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं, NCERT में शो करने का यही तरीका है कि इसको ये बोल्ड लेटर्स में लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये बोल्ड लेटर्स में लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ FAB नहीं है या FBA नहीं है, यहाँ पर मतलब है FAB वेक्टर और यहाँ पर मतलब है FBA वेक्टर। उसके बाद क्या किया इन्होंने, दोनों तरफ वैल्यूज़ रख दी गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डेल्टा टी कहाँ चला गया, तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ आने की वजह से। उसके बाद जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। देखिए ये क्या चीज़ है, ये है टोटल फाइनल मोमेंटम और ये है टोटल इनिशियल मोमेंटम। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और यही क्या कहता है, यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जो टोटल मोमेंटम होगा फाइनल और इनिशियल वो इक्वल होते हैं आपस में जब क्या हो रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो। अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर ज़ीरो है, ये कैसे पता चला, ये आपको इससे पता चलेगा। देखिए FAB वेक्टर, अगर ये माइनस वाले प्रोडक्ट को मैं इस टर्म को अगर लेफ़्ट हैंड साइड में ले आता हूँ तो कितना हो जाएगा, प्लस FBA वेक्टर, और राइट साइड में कितना बच जाएगा, 0। तो देखिए इन दोनों का सम क्या आएगा, F एक्सटर्नल के बराबर आएगा। तो F एक्सटर्नल इस तरीके से यहाँ पर कितना हो गई है, ये हो गई है यहाँ पर 0। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट चीज़ क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल से क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम इसको रीड कर लेते हैं एक बार। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी आपको पढ़ने में। ठीक है, इतना ठीक है जूम। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल in mechanics refer to the situation when the net external force on the particle is 0। मतलब अगर नेट फोर्स कितनी लग रही है किसी पार्टिकल पर, 0 लग रही है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कोई एक बॉडी काहे में है, इक्विलिब्रियम में है। ये तरीका होता है, कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है पता करने का है या नहीं, आप चेक कर लीजिए कि नेट फोर्स 0 लग रही है या नहीं लग रही है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ दिस मीन्स दैट अ पार्टिकल इज़ ईदर एट रेस्ट और एट यूनिफॉर्म मोशन। इसे छोड़िए, आप आगे बढ़ते हैं। दो फोर्सेस मान ली हमने, FA1 और F2 वेक्टर, ये किसी एक पार्टिकल पर एक्ट कर रही हैं और इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अगर ये दोनों फोर्सेस पार्टिकल पर लग रही हैं और इक्विलिब्रियम में बॉडी है तो इसका मतलब ये है कि टोटल फोर्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। फोर्सेस कितनी लग रही हैं, 2 लग रही हैं।
उन दोनों का सम कर लिया आपने। अब अगर सम कर लिया तो यहाँ से आप F1 वेक्टर कितना लिख सकते हो, आप लिख सकते हो F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। दैट मीन्स अगर दो फोर्सेस लगने के बाद इक्विलिब्रियम हमें सेट करना है तो इसका मतलब ये है कि फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होना चाहिए, और ये दोनों जो फोर्सेस हैं इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ज़ीरो नहीं, इक्वल होना चाहिए। ये जो दो फोर्सेस आ रही हैं यहाँ पर, ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। साथ में माइनस साइन बता रहा है कि जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए। अब इसी तरीके से अगर तीन फोर्सेस हैं, अगर किसी बॉडी पर तीन फोर्सेस लग रही हैं तो तब इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी कि तीनों का वेक्टर सम जो होगा फोर्सेस का वो कितना आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। जैसे यहाँ पर इन दो फोर्सेस का आ रहा है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ये चीज़ यहाँ पर आ गई, तो ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कॉमन फोर्सेस हैं, मतलब कुछ फोर्सेस के बारे में हमें पढ़ना है जो बड़ी कॉमन होती हैं मैकेनिक्स के अंदर। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर नाम दिख रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स पता होगा आपको कहाँ पर लगती है, किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में लग सकती है। अगर मान लीजिए दो बॉडीज़ का जो मास है वो m1 m2 है और इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो r है, तो यहाँ पर जो फोर्स आ जाएगी ग्रेविटेशनल वो कितनी आ जाएगी, F इज़ इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ये यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद में जो अगली वाली कॉमन फोर्स बता रखी है इन्होंने, उसके बारे में ये कह रखा है कि जो फोर्स होती है एक तरीके की वो तब लगती है जब सॉलिड कोई बॉडी लिक्विड के कांटेक्ट में आती है। सॉलिड बॉडी जो है और सॉलिड और फ्लूइड्स के बीच में जो है लगती है। ठीक है, उन फोर्सेस के बारे में भी यहाँ पर उन्होंने बता रखा है। देखिए एक फ़ोर्स यहाँ पर इन्होंने बता रखी है टेंशन। ये टेंशन फोर्स क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई रस्सी है, ये दो ब्लॉक्स हैं, इन दो ब्लॉक्स को आपने क्या करा, एक रस्सी से बांध दिया, ये वो रस्सी है। ठीक है, तो इस रस्सी में क्या आ जाएगी, एक फ़ोर्स डेवलप हो जाती है। तो किसी भी रस्सी या किसी भी तार में, वायर में अगर कोई फ़ोर्स डेवलप हो रही है तो वो फोर्स क्या कहलाती है, टेंशन कहलाती है। ठीक है, और ये टेंशन को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, द रीस्टोरिंग फोर्स इन अ स्ट्रिंग, किसी भी वायर में या स्ट्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स लगती है, डेवलप हो जाती है, उसी को आप क्या कहा करते हैं, टेंशन कहा करते हैं। टेंशन को T से डिनोट करते हैं और ये बॉडी से हमेशा दूर जाते हुए लगती है। यानी कि अगर मान लीजिए इधर ये ब्लॉक रखा हुआ है तो इस ब्लॉक से इधर और इस ब्लॉक से इधर की तरफ होगी, ये होगी डायरेक्शन ऑफ टेंशन। ठीक है, दोनों तरफ जो है सेम फोर्स ही लगती है। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आपके पास रस्सी का एक टुकड़ा है तो एक टुकड़े में जो होगी ना, एक ही टेंशन लगेगी यहाँ पर। ठीक है, ये जो रस्सी है यहाँ पर इसमें इतने पार्ट में, क्योंकि ये एक ही पार्ट है, तो इस पूरी रस्सी में, पूरी वायर में एक ही टेंशन लगेगी, सेम टेंशन लगेगी हर जगह पर। ओके, उसके बाद देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्स यहाँ पर कौन सी है। हाँ जी, तो यहाँ पर आप एक फोर्स देख रहे हो, देखो ये है, ये देखिए यहाँ पर बता रखा है, टू कॉमन फोर्सेस आर टेंशन इन अ स्ट्रिंग एंड फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। एक स्प्रिंग की वजह से भी फोर्स जो है जनरेट होती है। टेंशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, जो कहाँ पर होती है, स्ट्रिंग में होती है। अब फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग पढ़ते हैं। देखिए अगर आप स्प्रिंग को क्या करते हैं, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट लेकर के आते हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट आप कितना ला रहे हो, x ला रहे हो, तो इस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक फ़ोर्स डेवलप हो जाती है जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। ये जो फोर्स रहती है ये डिस्प्लेसमेंट के माइनस, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके आप यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, कांस्टेंट हो जाता है वो k। ये जो k कांस्टेंट है इसका नाम होता है फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग के केस में यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर कांस्टेंट लगाते हैं, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट हम कह देते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गई एक तरीके की फ़ोर्स। इसके बाद और देखते हैं और कौन सी फ़ोर्स है। देखिए एक फ़ोर्स यहाँ पर दिखा रखी है, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन कहाँ पर लगती है, जब भी कोई दो सरफेसेस, सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगती है। उस अपोजिंग फोर्स का नाम होता है फ्रिक्शन। किस चीज़ का अपोज करती है ये, अपोज ऑफ मोशन।
किसी बॉडी के मोशन का किसी दूसरे सरफेस पर अपोज करती है और उस फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये तब लगती है जब कोई दो फोर्सेस क्या आ रहे हों, कांटेक्ट में आ रहे हों। और साथ में एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ये बॉडी है, तो बॉडी और सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स को मैं कैपिटल F से दिखा दूं तो इस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स होगी। अब मान लीजिए अगर एक्सटर्नल फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। और एक्ट किस जगह पर करती है, एक्ट करती है उस जगह पर जहाँ पर दो बॉडीज़ कांटेक्ट में आ रही हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये पिंक कलर से आपको दिखा रखा है कि यहाँ पर दोनों बॉडीज़ कांटेक्ट में आ रही थी, तो इसी जगह पर जो है फ्रिक्शनल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद और देखते हैं बाकी कौन कौन सी फोर्सेस हैं। एक ये बायंट फोर्स यहाँ पर बता रखी है, देखिए बायंट फोर्स। बायंट फोर्स कब लगती है, मान लीजिए आपने किसी बीकर में या बकेट में पानी भर लिया या कोई भी लिक्विड भर लिया, इसके अंदर अब आप क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी को आपने इसमें डुबा दिया। डुबाने के बाद आपने हाथ हटाया तो वो बॉडी जो है ऊपर की तरफ आ जाती है। ये जो ऊपर की तरफ आती है क्यों आती है, बिकॉज द लिक्विड अप्लाइज सम फोर्स ऑन द बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड बायंट फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड बायंट फोर्स। बायंट फोर्स उसे कहा जाता है। ये यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है। अब बायंट फोर्स होती कितनी है, जितना कि वेट लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है या फ्लूइड का वेट डिस्प्लेस हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायंट फोर्स कहते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन होती है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई थी, ठीक है। तो क्या होगा कि जो बॉडी रखी है ये टेबल पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बदले में क्या होगा, ये जो टेबल है ये भी इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ। तो ये जो बदले में हमें फोर्स मिली है यहाँ पर, इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि एक रिएक्शन है, कुछ एक्शन होने के बाद हमें रिएक्शन मिला। दूसरी बात, इसमें नॉर्मल वर्ड क्यों आ रहा है, नॉर्मल वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो फोर्स है जो कोई भी टेबल जैसे इस ऑब्जेक्ट पर लगा रही है, तो ये कहाँ पर लगाती है, किस डायरेक्शन में लगाती है। जो नॉर्मल रिएक्शन लगती है, दोनों सरफेसेस जहाँ कांटेक्ट में आ रहे हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है, यानी कि इस तरीके से। अब मान लीजिए कोई सरफेस अगर ऐसा हुआ, इंक्लाइंड हुआ, और उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा था इस तरीके से, तो यहाँ पर जो बाइंड फोर्स होगी यहाँ किस तरीके से लगेगी, देखिए दोनों सरफेसेस यहाँ कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन, अगर हम एन से इसे डिनोट करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन ये हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी फोर्सेस दे। इसके बाद हाँ देखिए, एक तरीके की और फोर्स होती है यहाँ पर। मान लीजिए आपके पास एक बीकर में पानी भरा हुआ है, आपने एक स्टिरर लिया जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, और आप उस पानी को गोल गोल घुमाने लगते हो, है ना, इस तरीके से घुमाने लगते हो, तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि पानी जो होगा वो घूमना बंद हो जाएगा और नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है फ्रिक्शन के कारण, है ना, ऐसा होता है फ्रिक्शन के कारण। यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो फ्लूइड में लग रहा है, और फ्लूइड में जो फ्रिक्शन लगता है उसको आप कहते हैं विस्कस फोर्स, उसको आप कहते हैं विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स क्या है, विस्कस फोर्स इज़ एन अपोजिंग फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ अ फ्लूइड ओवर अ सरफेस, है ना, जहाँ पर लिक्विड की जो लेयर्स हैं आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे के मोशन का अपोज करती हैं। मान लीजिए एक लेयर ये जा रही है, एक मिनट, एक लेयर, एक मिनट बच्चों, एक लेयर ये जा रही है, एक लेयर ये जा रही है, तो क्या होगा कि ये दोनों लेयर्स जो होंगी ये आपस में एक दूसरे का मोशन का क्या करेंगी, अपोज करेंगी, है ना। तो इन लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहा करते हैं। स्प्रिंग वाला केस मैंने समझा दिया आपको, वायर वाला केस समझा दिया, यहाँ पर ये विस्कस फोर्स समझा दिया, और ये बाइंड फोर्स वाला केस है कि जब आप किसी चीज़ को डुबा करके छोड़ देते हैं तो वो ऊपर आती है। ये सभी टाइप की फोर्सेस हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या चीज़ें दे रखी हैं चैप्टर में। हाँ तो बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। मैं आपको एक बार टॉपिक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन के बारे में अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम। एक बार वैसे हमने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लेते हैं कि फ्रिक्शन जो है ये होता क्या है। फ्रिक्शन जो है बच्चों एक अपोजिंग फोर्स होती है ना, और किसका अपोज करती है ये, मोशन का, बॉडी के मोशन का अपोज करती है। अब क्योंकि ये अपोज करेगी तो ये किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू मोशन जो है ये क्या करती है, एक्ट करती है। मान लीजिए किसी बॉडी का मोशन जो है इस तरीके से हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो लेफ़्ट साइड में लगेगी, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, ये देख रहे हो। अब ये एफ एस यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एफ के लिखा है, ये क्या चीज़ें हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊँगा। देखिए दो तरीके का फ्रिक्शन होता है, दो तरीके का फ्रिक्शन होता है। एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में फ़र्क क्या है, देखिए इनमें डिफरेंस ये है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये तब एक्ट करता है जब बॉडी मोशन में होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ एक्ट करेगा जहाँ बॉडी रेस्ट में होगी, तो ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा। तो अगर बॉडी, मान लीजिए आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप एक बॉडी देख रहे हो, ये बॉडी पर आपने फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जो बॉडी है इस टाइम पर ये क्या है, रेस्ट में है। इवन आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तब भी ये बॉडी रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है, क्योंकि कोई एक ऐसी फोर्स है जो इस मोशन का क्या कर रही है, अपोज कर रही है ना। और किस टाइम पर, जब बॉडी रेस्ट में थी। इसलिए इस वाली फोर्स को हम, इस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या नाम देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स नाम देते हैं। क्या होगा, अगर आप ये एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू है, ये फोर्स आप बढ़ाते चले जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बॉडी है वो रेस्ट से काहे में आ जाएगी, बॉडी जो है रेस्ट से आ जाएगी मोशन में। तो देखिए इस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इस टाइम पर भी लगती रहेगी। इस टाइम पर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है उसे हम एफ के से डिनोट करेंगे, और ये कौन सी वाली फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के से डिनोट करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ एस से डिनोट करते हैं। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन दोनों की जो होगी मोशन के अगेंस्ट ही होती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन, ऐसा यूनिट पता करना चाहते हैं, तो ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन ही होती है। और डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, ML_T-2 ही होगा, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, और इसके बाद इसका ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया और यूनिट हो गई। अभी और इसमें क्या चीज़ें हैं, एक चीज़ इसमें और होती है, देखिए आप लोग यहाँ पर इस केस में और दोनों इस केस में भी आप देख रहे होंगे कि जो स्टैटिक फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, और दूसरी कौन सी है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। देखो मैं बड़ी करके दिखाता हूँ आपको फिगर, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये वाली, और जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये वाली, ये दोनों की दोनों देखिए कहाँ पर आपकी एक्ट कर रही हैं, ये उस जगह पर एक्ट कर रही हैं जहाँ पर दो फोर्सेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसी के पैरेलल। यहाँ पर भी दो कांटेक्ट में आ रहे हैं फोर्सेस, दो सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उसी जगह पर उसी के पैरेलल ये वाली फोर्स भी लग रही है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स जो है एक्ट कहाँ पर करती है, कहाँ एक्ट करती है, जहाँ पर दो बॉडीज़ कांटेक्ट में आ रहे हैं उसके पैरेलल क्या करती है, ये एक्ट करा करती है। अब मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ जिससे आगे हम पढ़ पाएँ इसको, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, चलिए। इसके आगे क्या चीज़ें दे रखी हैं हमको, इसका फार्मूला दे रखा है बच्चों यहाँ पर, हाँ, तो इसका जो है फार्मूला दे रखा है, देखिए यहाँ पर ये समझा भी रखा है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है। पढ़ लेते हैं इसको। अप्लाइड फोर्स, एज अप्लाइड फोर्स F increases, Fs also increases, remaining equal and opposite to the applied force। देखिए ये कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी थी, इस बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी, तो आप क्या करते गए, फोर्स बढ़ाते चले गए। तो फोर्स बढ़ाते चले गए, तब भी आपने यही देखा कि बॉडी अभी भी क्या है, रेस्ट में है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब यहाँ पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही थी, जिसका नाम Fs है, इसकी वैल्यू भी क्या होती जा रही हो, बढ़ती जा रही हो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है ये अपने आप की वैल्यू को क्या करती है, एडजस्ट करती है,
अगर एक्सटर्नल फोर्स कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम हो जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाती है। तो ये क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है ना। इस तरीके से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो जिस टाइम पर आप फोर्स क्योंकि बढ़ाते चले जा रहे हो, लगातार इंक्रीज़ करते चले जा रहे हो, और ये बॉडी एक टाइम पर ऐसा आएगा कि ये बॉडी आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी, तो ठीक मूव करने से पहले, जस्ट मूव करने से पहले क्या होगा, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, और उस टाइम पर स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या आ जाएगी, आपको मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पर मिलेगी। बॉडी के मोशन में आने से ठीक पहले, मोशन में आने से ठीक पहले की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे ही बॉडी मोशन में आ जाएगी, दूसरा फ्रिक्शन यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा। तो जब ऐसा होता है कि बॉडी जो है रेस्ट में ही रहती है, फोर्स अप्लाई करने पर भी ऐसे टाइम पर जो फ्रिक्शन लगता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है क्या करता है, अपोज करता है इम्पेंडिंग मोशन का। इम्पेंडिंग मोशन मतलब जो मोशन आप कराना चाह रहे थे उसका जो है अपोज करता है। यहाँ पर देखिए दे भी रखा है, द टर्म इम्पेंडिंग मोशन मीन्स मोशन दैट वुड टेक प्लेस अंडर द अप्लाइड फोर्स, बट फ्रिक्शन की वजह से जो वो मोशन है वो हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे मोशन को आप इम्पेंडिंग मोशन कहते हो, जो होना तो था लेकिन हो नहीं पा रहा है। वी नो दैट द फोर्स अप्लाइड एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट, द बॉडी बिगिंस टू मूव। जब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उस टाइम पर बॉडी कहाँ में आ जाएगी, उस टाइम पर जो बॉडी है ये मोशन में आ जाएगी, है ना। तो यही देखिए, यही जो होती है एफ एस मैक्स, इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, या दूसरा नाम है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है बच्चों, ये क्या होती है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है दो बॉडीज़ का, उसके तो इंडिपेंडेंट रहती है। और किस तरीके से चेंज होती है, ये होती है चेंज विद द नॉर्मल फोर्स, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन। जो एफ एस मैक्स होती है बच्चों, कहीं पर भी अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तो एफ एस मैक्स ज़रूर आएगा वहाँ पर। तो ये एफ एस मैक्स जो होती है ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं म्यू एस। अब ये म्यू एस यहाँ पर क्या चीज़ है, म्यू एस का नाम होता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि एफ एस मैक्स कितना होगा, म्यू एस एन के बराबर होगा, है ना। तो सीधी सी बात है, जो एफ एस होगा यानी कि मैक्सिमम से जो कम वैल्यू होगी वो क्या होगी, म्यू एस एन, इससे क्या होगी, कम होगी, या तो कम होगी या इक्वल हो सकती है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पर एफ एस मैक्स न लिख करके क्या लिख रहे हैं, एफ एस लिख रहे हैं। तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स जो है एफ एस मैक्स से ज़्यादा हो जाएगी, बॉडी स्लाइड करने लगेगी, मैंने बताया आपको, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेज फ्रॉम द स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू। देखिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जब बॉडी रेस्ट से मोशन में आती है तो क्या होगा, ये तब होगा जब एफ एस मैक्स से ज़्यादा हो जाती है एक्सटर्नल फोर्स, है ना। और जब मोशन में आएगी तो कौन सा फोर्स लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लग जाती है। तो होता क्या है, इस तरीके का आपको ग्राफ मिलता है। देखिए मैं ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए, पहले कोई एप्रोप्रिएट जगह, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर मिल जाए तो मैं, हाँ ठीक है, यहाँ पर आपको मैं ग्राफ बना करके दिखाता हूँ। ग्राफ से आप समझ जाएंगे। देखिए ये कुछ इस तरीके का हम यहाँ ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हम दिखा देंगे, यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स दिखा देंगे। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे थे, शुरुआत में क्या हो रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रही थी, और क्या हो गया था, एक टाइम पर पहुँच करके मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाती है, यानी कि एफ एस मैक्स, ठीक। यहाँ से पहले बॉडी काहे में है, रेस्ट में है। इसके बाद बॉडी काहे में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी मोशन में,
क्योंकि फोर्स आप लगातार बढ़ाते चले जा रहे हो। जब यहाँ पर इसके बाद बॉडी मोशन में आ जाएगी तो बच्चों होता ये है कि मोशन में आने के बाद देखिए ग्राफ क्या हुआ है, ग्राफ यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मोशन के टाइम पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है एफ के, वो क्या होती है, वो कम होती है एफ एस मैक्स से। आपने देखा भी होगा अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको मूव कराना ज़्यादा आसान है बजाय कि जो बॉडी काहे में है, रेस्ट में है ना। इसी कारण से ये होता है। ये ग्राफ था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाता है कई बार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला दे रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था एफ एस मैक्स हुआ करता है नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है वो भी नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होती है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके यहाँ भी एक कांस्टेंट आता है। यहाँ जो कांस्टेंट आता है इसे म्यू के कहते हैं। म्यू के क्या होता है, म्यू के हुआ करता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है। वहाँ पर क्या आता था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आया करता था, म्यू एस आया करता था। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है। आपसे क्या कहा गया है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, है ना, ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स इज लाइंग ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दे रखा है, ये म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.15। एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है। अब देखिए म्यू एस कहाँ पर लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स में लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है कितना होती है, म्यू एस एन हुआ करती है। इक्वल भी मान सकते हैं हम, वैसे तो लेस देन इक्वल टू हुआ करता है, लेकिन यहाँ इक्वल भी मान करके चल रहे हैं हम। अब स्टैटिक फॉर्म में है, मतलब रेस्ट में है बॉडी, तो रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगी, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी। एक्सटर्नल फोर्स को हम एम ए लिख सकते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, म्यू एस एन आ जाएगा। ए इज़ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू एस। ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, एम जी के बराबर हो जाएगी। अपॉन में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ए कितना बच जाएगा यहाँ पर, म्यू एस जी के बराबर यहाँ बच जाएगा। इन दोनों की आप वैल्यू पुट कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल रिएक्शन जो है एम जी कैसे आ गई, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ। अगर जैसे मान लीजिए यही एक बॉडी है, ठीक है, तो क्या होगा, इस बॉडी का कुछ वेट होगा जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, और इस mg के अगेंस्ट ये जो सरफेस था ये इस बॉडी पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ mg के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ना तो नेट मोशन ऊपर हो रहा है ना नेट मोशन नीचे की तरफ हो रहा है ना। अलोंग वर्टिकल कोई मोशन हो ही नहीं रहा। अगर अलोंग वर्टिकल कोई मोशन नहीं हो रहा तो n माइनस एम जी ये कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ से n कितना आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा आप बुक के, है ना, तो इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सरफेस दे रखा है वो इंक्लाइंड है। तो पहले इस सरफेस को ही इस फिगर को समझिए आप। यहाँ पर जो फोर्स लगती है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है, इसलिए ये यहाँ पर mg आपको दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसके बाद इन्होंने पहले ऐसे करके दो लाइन खींच ली है, एक तो वर्टिकल और एक पैरेलल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और जो हॉरिजॉन्टल है वो इस सरफेस के पैरेलल है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये लाइनें ड्रॉ कर ली हमने। तो ये क्या कह रहे थे कि ये जो सरफेस है ये थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों याद रखना ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यहाँ पर आपकी ये mg फोर्स है तो इसका आप कंपोनेंट कर सकते हैं। इधर तो आ जाएगा mg कॉस थीटा, जिधर की साइड थीटा है, और इस साइड पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा mg साइन थीटा। ये कैसे करें हैं, ये हमने जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, तो कंपोनेंट कर दिए हमने यहाँ पर एक वेक्टर के, जो वेक्टर कौन सा है, mg। ठीक है, इसके कंपोनेंट कर दिए। अब देखिए बॉडी क्या होगी, ये बॉडी नीचे की तरफ लुढ़कना स्टार्ट होगी, किस कारण से, ये mg साइन थीटा जो फोर्स लग रही है इसकी वजह से। अब अगर बॉडी का मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो सीधी सी बात है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो ऊपर की तरफ लगेगी, इसलिए देखिए यहाँ पर ये आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिखा रखी है।
ये लगेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इस जगह पर सरफेस के पैरेलल, लेकिन आसान बनाने के लिए चीज़ों को ये यहाँ पर दिखाई गई है कि आपकी यहाँ पर एक ही पॉइंट पर फोर्स लग रही है। अब देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से है ना, ऊपर की तरफ नहीं होगी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गई। यहाँ पर भी देखिए अलोंग वर्टिकल, ये अलोंग वर्टिकल है, तो अलोंग वर्टिकल तो बॉडी का मोशन हो नहीं रहा है, कोई मोशन नहीं है। जो भी मोशन है वो कहाँ हो रहा है? अलोंग हॉरिजॉन्टल हो रहा है। इसलिए जो वर्टिकल में फोर्सेस आ रही हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या मोशन हो रहा था कि बॉडी नीचे की तरफ मूव करना चाह रही थी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। बॉडी का मास 4 kg है, रेस्ट में है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। द प्लेन इज़ ग्रेजुअली इंक्लाइंड और थीटा कितना है? 15 डिग्री। द मास जस्ट बिगिनस टू स्लाइड, मास क्या करता है? जस्ट बिगिन टू स्लाइड करता है, यानी कि ये जो एफ होगा ये एफ मैक्स होगा। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस? यहाँ पर आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो सीधी सी बात है आप यहाँ पर दो इक्वेशन अप्लाई करिए। एक तो मोशन आपको पढ़ना है, यहाँ स्टडी करना है अलोंग वर्टिकल, और एक बार आपको मोशन स्टडी करना है अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल जब आप मोशन स्टडी करेंगे, क्योंकि बॉडी मूव तो नहीं कर रही है अभी, तो यहाँ पर mg sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा? fs मैक्स के बराबर हो जाएगा। और वर्टिकल से कितना आ गया था? n इज़ इक्वल्स टू mg cos थीटा आ गया था। ये आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ कर लीजिए, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ थी यहाँ पर। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है आगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया है? रोलिंग फ्रिक्शन, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? बहुत ही आसान चीज़ है बच्चों। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा? अभी तक बॉडीज़ क्या कर रही थी? स्लाइड कर रही थी। बॉडीज़ क्या कर रही थी? स्लाइड कर रही थी। एक सरफेस पर दूसरी बॉडी क्या कर रही थी? स्लाइड कर रही थी। स्लाइड कर रही थी मतलब घसीटते हुए ले जा रहे थे हम बॉडी को। अब क्या होगा? बॉडी जो है रोल करते हुए जाएगी। जैसे एक पहिया होता है, जैसे एक पहिया होता है ना, और पहिया क्या करता है? रुढ़कता हुआ जाता है सरफेस पर। ठीक है, तो उस टाइम पर जो उस व्हील और सरफेस के बीच में जो भी फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा होगा, उसी फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। कब? जब एक बॉडी एक सरफेस पर रोल कर रही हो या करना चाह रही हो। इफ़ इट इज़ रोलिंग और टेंड्स टू रोल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तब क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद अब कुछ एडवांटेजेस होते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, किस पर होते हैं एडवांटेजेस? स्लाइडिंग फ्रिक्शन पर। रोलिंग फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले अच्छा माना जाता है, तो वो एडवांटेजेस आपको फाइंड आउट करने हैं। ये आपका होमवर्क है। 4 एडवांटेजेस आपको फाइंड करने हैं जो रोलिंग फ्रिक्शन के होते हैं। ठीक है, एज़ कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये आज आपका होमवर्क है। ठीक है, ये हो गया आपका रोलिंग फ्रिक्शन। अब आगे चलते हैं चैप्टर में, आगे क्या चीज़ दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? सर्कुलर मोशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, सर्कुलर मोशन, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, तो बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए क्या होता है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, या आप कह दो कि एक फ़ोर्स की ज़रूरत होती है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। यहाँ पर m क्या है? बॉडी का मास, v क्या है? बॉडी की वेलोसिटी, और r क्या चीज़ है? उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी चाहिए यहाँ पर, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ये जो इसकी डायरेक्शन होती है कहाँ होती है? सेंटर की तरफ होती है। इसीलिए इसका नाम जो पड़ा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स पड़ा है। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ से आया है? ये फार्मूला आया है सेकंड लॉ को यूज़ करके। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सेकंड लॉ को यूज़ करके ये फार्मूला हम लाए हैं। इसके बाद मान लीजिए कोई एक बॉडी है। ठीक है, जैसा आपको यहाँ सामने दिखा रखा है, एक कार है। कार का क्या होगा? कुछ मास होगा। कुछ मास होगा, तो मास जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, एक मिनट।
तो यहाँ पर ये जो बॉडी है, इस बॉडी का मास कितना है? बॉडी का मास है इसका यहाँ पर m, मास बॉडी का m है, इसीलिए नीचे की डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट कर रहा है जो है mg। अब क्योंकि किसी सरफेस पर ये मूव कर रही है तो सीधी सी बात है नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की साइड लग रही है जो n के बराबर है। अब ना तो ये गाड़ी जो है ऊपर की तरफ जाएगी ना नीचे की तरफ जाएगी, इसका मतलब अलोंग वर्टिकल क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। अगर अलोंग वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर n किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। इसके बाद में अगली चीज़, यहाँ पर अगर बॉडी ये जो कार है अगर ये सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, ये बॉडी का क्या है, ये टॉप व्यू दिखा रखा है। ये आपकी कार है, बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है इस तरीके से। स्पीड कितनी है उसकी? v। अगर सर्कुलर पाथ पर ये मूव कर रही है तो सीधी सी बात है कि सर्किल का जो सेंटर होगा, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे हम कहते हैं Fc, है ना। अब यहाँ पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है कौन प्रोवाइड कराएगा? देखिए ये जो कार है, कार के टायर और जो सड़क होगी इनके बीच में क्या लगेगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको यहाँ दिखा रखी है, देखिए इस तरीके से। तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है वो किस वजह से होती है? वो फ्रिक्शन की वजह से प्रोवाइड होती है। हर किसी केस में सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग वजह से होती है। इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। तो जब आप इस सेंट्रीपिटल फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर रखोगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ रिज़ल्ट निकल करके आएगा। देखिए सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको कि अलोंग वर्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम है, इसलिए n इक्वल टू mg आ जाएगा। तो यहाँ पर ये mg आ गया। अब इसके बाद अलोंग हॉरिजेंटल भी देखिए आपने इक्वेशंस लिखी होंगी। मैंने आपको बताया कि जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको यहाँ पर किसके बराबर रख दिया? देखिए फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर रख दिया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे लेस देन इक्वल टू का साइन। ये लेस देन इक्वल टू का साइन इसलिए है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना ये क्या होनी चाहिए? इस फ्रिक्शनल फोर्स से, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होनी चाहिए? तो कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। क्यों? अगर ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गई ना, मतलब अगर फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर कम हो गई और दूसरी जो फोर्स है ज़्यादा हो गई तो जो कार है जो सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव कर रही थी, ये सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल ना करके क्या हो जाएगी? फिसल जाएगी इधर की तरफ, इस साइड में मोशन कर जाएगी, रपट जाएगी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट फ्रिक्शनल फोर्स मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर रख दिया। क्यों? अभी बताया था मैंने कि हॉरिजेंटल मोशन में क्या हो रहा है, अलोंग हॉरिजेंटल क्या हो रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से मिल रही थी। इस इक्वेशन से आपके पास यहाँ v² की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर है, पहले ही हमने पता लगा लिया। तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे आपके पास आंसर निकल कर के आएगा इतना। यहाँ से आप v मैक्स यानी कि v की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ये कितना होगी? ये हो जाएगी μs/g या μ/g भी कह सकते हो आप। तो ये v मैक्सिमम क्यों लिख रखा है यहाँ पर? ये इसीलिए लिख रखा है, मैंने आपको अभी बताया कि अगर सर्कुलर ट्रैक पर गाड़ी दौड़ रही थी गोल गोल, है ना, और ये अगर इसे मूव करना है, अगर इस गाड़ी को मूव करना है तो क्या होगा? यहाँ पर इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी उस वेलोसिटी से, मैक्सिमम वेलोसिटी से ज़्यादा हो गई तो ये कार जो होगी इस साइड पर ट्रैक से दूर स्लाइड हो जाएगी, रपट जाएगी, है ना, ये चीज़ होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम ना हो जाए, इसलिए हम जब भी टर्न आता है, कभी देखा होगा आपने, तो टर्न आने पर बॉडी की जो स्पीड है वो हम स्लो कर लेते हैं, जो गाड़ी है उसकी स्पीड हम स्लो कर लेते हैं। ये तो हमने पढ़ा था लेवल रोड पर, ये हमने पढ़ा था लेवल रोड पर। अब इसके बाद हम ये कहाँ पढ़ेंगे? इंक्लाइंड रोड पर। क्या होता है कि क्योंकि कॉर्नर्स पर जब टर्न आता है, इस तरीके से कोई टर्न आया, तो हमें अपनी गाड़ी की जो स्पीड है वो स्लो करनी पड़ती है। अगर स्लो ना करनी पड़े तो क्या करेंगे हम? तो हम उस सर्कुलर कर्व को इंक्लाइंड बना देते हैं।
आपने देखा होगा जब भी नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस हाईवे पर आप जा रहे हों और कोई टर्न आता है तो सड़क जो होती है एक तरफ से उठी हुई होती है। वो क्यों होती है? जिससे आपको मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स मिल पाए और आप गाड़ी की स्पीड कम किए बगैर ही सेफली उस कर्व पर क्या कर सकें, टर्न ले सकें, जिससे आपकी कार स्लाइड भी नहीं होगी और आप आराम से चले भी जाएंगे। ये जो पार्ट है ये मैं आपको ये जो टॉपिक है ये मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में अभी हम इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक पढ़ रहे हैं। ये वाला जो पढ़ेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा पूरा टॉपिक और नोट्स बना लीजिएगा ध्यान से।